Good morning, children. In the last class, what we have learned about the ideal solution, Rawls law, and then we learned about the ideal solution. We have also seen what is ideal and non-ideal solution. Okay, so ideal solutions, we have seen that it is a solution that obeys Rawls law, and here the interacting forces between the components AA and component BB is equal to the component AB. That means when A and B intermix to give you the solution, in the solution, the interacting forces that develops between AB is equal to what we had seen when it was originally AA or it was originally B component. Interacting forces are equal. Now, when the interacting forces are equal, then what will happen? When you add solute and solvent together, then there will be no change in the volume. That means if you have taken 5 liter solvent and 1 liter solute, then the ready solution will be exactly 6 liter. 5 plus 1, 6 liters. There will be no change. It will be neither less than or more than 6. Then we call it an ideal solution. Now, about the delta H of mixing, that is the enthalpy change. And enthalpy change is also not equal to for ideal solution, it was equal to 0. Now, children, these were the conditions for ideal solution. Now we are calling non-ideal solution. Means non-ideal, it is not an ideal. That means it will not obey Rawls law. It will not obey Rawls law. These are the solutions which do not obey Rawls law. And also the interacting forces. The interacting forces that develops between A and B will not be equal to what we have seen in AA or BB. That means either it will be less than or it will be greater than. And delta H of mixing, it will also not be equal to 0. Delta V of mixing, it will also not be equal to 0. That means it will be either less than or greater than what is expected. Or delta H will also be either greater than or less than. On this basis, we categorize non-ideal solution into 2 types. That is, non-ideal solution showing positive deviation and non-ideal solution showing negative deviation. Positive deviation and negative deviation. How we define? Positive deviation means what Rawls have given the expected value PA is equal to P naught A XA. We have seen in the last class also. So PA is the partial pressure of component A, which must be equal to P naught A. That is the vapor pressure of pure component A into its mole fraction in the solution XA. PA is equal to P naught A XA. That means the partial pressure of a component A in the solution is equal to the product of partial pressure of the component A when it is pure A and its mole fraction in the solution. This was what expected from Rawls. But if the PA is positive, that means if the PA is greater than P naught A XA, then it is called positive deviation. And if PA is less than P naught A XA, then it is called negative deviation. Let us see in the next slide. Non-ideal solution showing positive deviation. Children, if it is positive, then we see that positive deviation from Rawls law occur when the vapor pressure of the component is greater than what is expected in the Rawls law. Just now I have said. For example, consider 2 components A and B from non-ideal solution. To form non-ideal solution, let the vapor pressure of the pure vapor pressure and mole fraction of a component A, PA and P naught A and XP respectively, and that of the component BB, PB, P naught B and XP respectively. These liquids will show positive deviation from Rawls law. That is, PA is greater than, positive deviation means PA is greater than P naught A XA and PB is greater than P naught B XP if both are volatile. As the total vapor pressure P naught A XA plus P naught B XP. अगर हम P total की बात करें, then it will be equal to P naught A XA plus P naught B XP, which will be greater than what should be according to Rawls law के value से ये ज़्यादा होगा.
वेपर ज्यादा बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन इज वीकर। ये कब होगा? मान लो कि ए बी का इंटरैक्शन वेपर प्रेशर कब ज्यादा होता है? जब इंटरैक्टिंग फोर्स कमजोर होता है। दैट मीन्स द इंटरैक्टिंग फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन ए और बी। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच क्या होगा? अगर ये इंटरैक्टिंग फोर्स कम है, then this molecule and this molecule will not come closer, they will be going away and away. तो जब ये दूर जाएंगे तो क्या होगा? जब दूर जाएंगे तो उनको पास लाने के लिए एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। then delta H will be positive. It is an endothermic example of endothermic process, which is heat is absorbed to form new molecular interaction is less than that heat release or breaking of the original molecular interaction. तो ये है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। वॉल्यूम का क्या होगा? व्हेन ए एंड बी आर नॉट कमिंग क्लोजर, तो दैट मींस द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, दैट मींस 0 से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जो रॉल्स लॉ के अनुसार इट शुड हैव टू बी 0, ये थोड़ा उससे बढ़ जाएगा। एंथैल्पी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज जो है वो बढ़ जाएगा, हीट ही एब्जॉर्ब करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इंटरैक्टिंग फोर्स क्यों? क्योंकि इंटरैक्टिंग फोर्स जो है वो वीकर है, तो वीकर होने की वजह से इनके वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेंगे। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के एग्जांपल क्या है? एसीटोन एंड CS2, एसीटोन एंड बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 और टॉलिन और क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल वाटर, acetone, ethanol, ethanol water. These are the examples of positive deviation. जब आप इनको करेंगे तो they will not be attractive. अब इथेनॉल वाटर है, ये क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा? वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप इथेनॉल को वाटर में डालोगे तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा। बट चूंकि इथाइल अल्कोहल में एक आर का जो आर पार्ट जो है C2H5, ये थोड़ा बल्कियर पार्ट है, तो ये थोड़ा सा फैला देगा, मतलब बॉन्ड को थोड़ा बड़ा कर देगा, ठीक है, ज्यादा जगह लेगा, जिसके चलते जो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगी दैट विल बी वीकर। और अगर ये बॉन्ड वीकर होगी तो आसानी से टूटेगा, तो वेपर प्रेशर इनके ज्यादा बनेंगे, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। तो अब अगला स्लाइड हम देखते हैं, नेगेटिव। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर आप ग्राफ, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, अगर आप ग्राफ देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन का, तो वो ग्राफ, ये डॉटेड लाइन, ये आप हटा दीजिए, ये आप हटा दीजिए, सिर्फ डॉटेड लाइन को आप इमेजिन करिए। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो लाइन है इट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर, और ये जो वेपर प्रेशर किसका है? प्योर सॉल्वेंट ए का। मतलब यहाँ पे आपने कोई प्योरिटी, यू हैव नॉट एडेड एनी सॉल्यूट, नाउ यू आर हैविंग ओनली द प्योर कंपोनेंट ए। मान लो पानी है तो प्योर पानी आपका, तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना होगा? 1। और आपने अभी कोई इम्प्योरिटी इसमें डाला ही नहीं है, कंपोनेंट बी आपने डाला ही नहीं है, तो इट्स मोल फ्रैक्शन विल बी 0। ठीक है, तो इस समय ये प्योर कंपोनेंट है ए, एंड इसका वेपर प्रेशर P0A। सपोज ये हम ले लेते हैं पॉइंट कि इसका वेपर प्रेशर इतना। अब इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट बी को। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी को, यहाँ पे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, और इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है, मतलब प्योर कंपोनेंट बी है, यहाँ इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो ये भी वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर होगा P0B। चलिए अब आप देखिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P0A ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, मतलब पानी जब आपका प्योर था, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी आपने नहीं डाला था। अब आप क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ये लाइन इंडिकेट कर रहा मोल फ्रैक्शन को। अब आप क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इसमें इम्प्योरिटी डालते जा रहे हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन डालते जा रहे हैं किसके? बी के। फिर थोड़ा और बी डाला, जैसे जैसे आप बी डालेंगे अब ये PA बन जाएगा, और PA की वैल्यू इस लाइन पे जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे PA की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब मोल फ्रैक्शन आप बढ़ा रहे हैं किसका? इसमें PB डाल रहे हैं, सॉरी बी कंपोनेंट P डाल रहे हैं।
जब आप कंपोनेंट बी डालेंगे तो पी नॉट ए या पी नॉट ए नहीं रहेगा, इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, घटते 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 यहाँ पहुंच गया। उसी तरह से आप इमेजिन करिए कि आपके पास प्योर कंपोनेंट बी का है और इस समय इसका वेपर प्रेशर ये। अब आप इसमें धीरे 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 इन वाटर मिक्स करते जाइए या कंपोनेंट ए मिक्स करते जाइए, तो इसका वेपर प्रेशर भी घटता जाएगा एंड यू विल गेट अ लाइन दिस। तो जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ था वो सिर्फ ये था लाइन और ये लाइन था, और सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, दिस वाज द लाइन। तो ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल सोल्यूशन का। बट नाउ वी हैव टू सी द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये आइडियल है पी नॉट ए एक्स, पी नॉट ए सॉरी ये पी नॉट ए एक्स का ग्राफ है, बट ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है क्योंकि इंटरैक्टिंग फोर्स कमजोर है तो इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। जो रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से अब इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, देखो ज्यादा बन रहा है ना, ये ज्यादा बन रहा है, पी ए है ये, दिस इज पी ए फॉर दैट विच इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ भी आप देखिए ये आइडियल का ग्राफ है, बट पीबी इंटरैक्टिंग फोर्स कमजोर है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो देखिए ज्यादा बन रहा है, ये ग्राफ है इसका। एंड अगर आप सॉल्यूशन का निकालना चाहे तो उसके लिए ये ग्राफ है, वो भी सॉल्यूशन से आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका वैल्यू ज्यादा है, वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि इंटरैक्टिंग फोर्स कमजोर है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी, विच विल बी ग्रेटर, मतलब पी ए प्लस पी बी या पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट अस सी द नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है चिल्ड्रन, जस्ट टू सी। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो इंटरैक्टिंग फोर्सेस हैं ए बी के बीच में, ये ए बी के बीच में जो इंटरैक्टिंग फोर्सेस हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू व्हाट देयर इज अ फोर्स बिटवीन ए और बी बी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया मतलब दे विल बी कमिंग क्लोजर, और अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो दे विल लूज सम एनर्जी, तो एंथैल्पी भी डिक्रीज कर जाए, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। याद रखना पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा वी इज पॉजिटिव, और नेगेटिव में डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा वी इज ऑल्सो नेगेटिव। और अगर ये इंटरैक्टिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बनेंगे, तो partial vapor pressure of component A will be less than what Rawls have expected, P naught A x A। ये Rawls law की वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो partial vapor pressure of a solution will become less than P naught A x A, और partial vapor pressure of component B will be less than P naught B x B। So this is the solution showing negative deviation। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन वो शो करेगा जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डाइथर, एसीटोन एनिलीन, नाइट्रिक एसिड वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर, एसिटिक एसिड पायरिडीन, HCl वाटर, एग्जांपल्स। ओके, नाउ द ग्राफ। अब देखो डॉटेड लाइन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डॉटेड लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल, और ये नेगेटिव डेविएशन है, मतलब आइडियली जितना इसको वेपर बनाना चाहिए था वो उससे कम वेपर बनाएगा। कम क्यों बनाएगा, क्योंकि इंटरैक्टिंग फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वेपर्स इसके कम बनेंगे। ये जितना प्योर फॉर्म में जितना ये बना रहा था, अब सॉल्यूशन में इसके वेपर कम बनेंगे, सॉल्यूशन में पीए का वेपर कम बनेगा, सॉल्यूशन में पीबी का भी वेपर कम बनेगा। तो अब आप देखिए कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पीए प्लस पीबी, जो कि कम हो जाएगा फ्रॉम रॉल्स लॉ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सो चिल्ड्रन, this is all about the
positive, ideal and non-ideal solution. Now a small topic is there, that is azeotrophs. What are azeotrophs? An azeotrophs is a constant boiling mixture. It is a mixture of two or more liquids whose properties cannot be altered by simple distillation. आप इनको कोई भी दो सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि एजोट्रॉप बना, बट एक खास रेशियो में जब आप उनको मिक्स करते हैं तो वो उस खास रेशियो में जब ये मिक्स होता है तब ये कहलाता है एजोट्रॉप। कब कहलाता है? जब दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर जाए, दे हैव अ कांस्टेंट बॉइलिंग, मतलब एजोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एक ही टेम्परेचर। अब दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे हैं तो आप उनको डिस्टिलेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? दोनों तो एक ही साथ बन जा रहे हैं लिक्विड से वेपर। An azeotrope is a liquid mixture with an equilibrium vapor pressure of the same composition as in liquid। मतलब इसका इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन उनके मोल फ्रैक्शन का लिक्विड फेज में होता है वही कॉम्पोजिशन उनके मोल फ्रैक्शन का वेपर फेज में होता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन द लिक्विड फेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन द वेपर फेज। मान लो कि कंपोनेंट ए इन द लिक्विड फेज इट्स मोल फ्रैक्शन इज XA और वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन YA है, तो ये दोनों सेम होगा। सेम इज द केस फॉर B, XB इज इक्वल टू YB। ठीक है, तो ये है एजोट्रोपिक, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ये दो तरह के होते हैं, एजोट्रोप्स दो तरह के होते हैं। One is called the minimum boiling azeotrope and the other is called the maximum boiling azeotrope. Minimum boiling, बेटा अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर हम किसी की बॉइलिंग की बात करें तो इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि ये कैसे डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा ऑफ कोर्स उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये शो करता है नेगेटिव। तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जिसका बॉइलिंग कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, पॉजिटिव डेविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम, नेगेटिव डेविएशन। The boiling point of this azeotrope is lower than the boiling point of its constituents। जो इनके constituents का boiling point है उससे कम होगा, उससे कम होगा। मान लो component A का boiling point 100 डिग्री है, component B का boiling point 90 डिग्री है। अब इनका जो azeotrope आप बनाओगे तो 100 और 90 दोनों से कम होगा, मतलब 89.2, 89.3 कुछ भी हो सकता है, बट वो दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। दैट इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप्स। ठीक है, दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, लार्ज वेपर प्रेशर, तो पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर बना रहे हैं। एंड लार्ज वेपर प्रेशर डिफरेंस ऑफ द कॉम्पोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, 95% इथाइल अल्कोहल एक्वस, मतलब आपने 95% इथाइल अल्कोहल लिया और 5% उसमें पानी। मतलब अगर आपको 100 ml बनाना है सोल्यूशन तो 95 ml अल्कोहल ले लो और 5 ml वाटर ले लो और दोनों को मिक्स कर दो, ये बन जाएगा एक एजोट्रॉप। क्योंकि ये एजोट्रॉप बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, वाटर की 373 केल्विन है, और इनका जो बना हुआ 95% इथाइल अल्कोहल एक्वस आप एजोट्रॉप जब बनाएंगे तो ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल कर जाएगा, दैट इज 351 केल्विन पे बॉइल कर जाएगा। नाउ द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, अभी मैंने कहा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स उसके वेपर प्रेशर कम होंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजोट्रॉप इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे अगर किसी का ले लो, कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 है, तो ये 100 से ज्यादा, मतलब 101, 100.2, 100 से ज्यादा के
इसका जो एजोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होगा. The maximum boiling azeotrope occurs if the solution exhibit negative deviation from ideally. That means अगर हम रॉल्स लॉ देखें तो रॉल्स लॉ से ये नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं. नेगेटिव क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम, आइडियल से वेपर प्रेशर कम, नेगेटिव डेविएशन. एग्जांपल है 68% एक्वस सॉल्यूशन, मतलब नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन. आपने 68% HNO3 लिया और उसमें 32% वाटर डाला. आपको 100 ml बनाना है सॉल्यूशन तो आप 68 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे, 32 ml वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, एजोट्रॉप बन जाएगा. और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 359, वाटर का 373, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पर बॉइल करेंगे, दैट इज 393.5 पर ये बॉइल कर जाता है. तो दिस मच ऑल्सो ओनली यू हैव टू नो अबाउट द एजोट्रॉप. थैंक यू चिल्ड्रन.